اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کیس کے شریک ملزم شاہد حسین خواجہ کی 100 روپے کے مچلکوں پر ضمانت منظور کر لی ہے۔ اویس یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، کیا تفصیلات ملی ہیں اس کیس کی سماعت کی؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 3 ارب اور 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کیس میں کراچی کے نجی بینک کے برانچ مینیجر شاہد حسین خواجہ کی 100 روپے کی مچلکوں پر ضمانت منظور کر لی ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن کا وفد مبارکباد دینے آیا شیخ ظفر السلام صاحب، تنویر احمد صاحب کو، دانیال شیخ صاحب کو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ملتان ٹیکس بار کی کہ ہمارا ایک کیس فیئر ٹرائل کے اوپر 10A کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اربوں روپے کا ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ اس میں تھوڑا سا مسکنسپشن اسٹریم لائن میڈیا میں جو ہائی لائٹ ہوا ہے اور اس میں مسکنسپشن دیا جا رہا ہے کہ 100 روپے کے مچلکے پہ کوئی ٹیکس فراڈ کے کوئی اربوں روپے کے ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ جو حقیقت ہے، ہم شیخ ظفر السلام صاحب کیونکہ اس میں کونسل ہے، اور یہ جو مسکنسپشن دی جا رہی ہے کہ کیا وہ جو پارٹیز ہمارے اس کیس میں ہیں، کیا وہ اس 237 کے کیس میں کیا FIR میں وہ نامزد تھیں؟ اگر وہ نامزد نہیں تھی تو پھر ان کو اٹھایا کیوں گیا، ان کو گرفتار کیوں کیا گیا، اور کیا پاکستان کے اندر قانون اور لاقانونیت کا جو ایک درمیان میں ڈفرینس ہے وہ اب اگر عدالت نے کر دیا تو اس کو ایک غلط موڑ کیوں لیا جا رہا ہے؟ اب میں گزارش کروں گا جناب شیخ ظفر السلام صاحب اور تنویر احمد صاحب سے کہ وہ اس کیس کے بریف اور ہسٹری کے بارے میں پورے پاکستان کے جو ٹیکس وکلا ہیں اور جو ہمارے ملتان ٹیکس بار کے ممبران ہیں ان کو آگاہ کریں۔ جی، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب نے بہت ہی ایک آزادانہ اور ڈیٹیلڈ دلیرانہ فیصلہ دیا ہے، جس میں انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن بیورو کے ڈائریکٹریٹ کے جو افسران تھے انہوں نے ایک FIR کاٹی 18/11/2024 میں۔ FIR کا نمبر ہے 7/2024۔ اس میں انہوں نے انلیگلی انلافلی کچھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا، اور اس میں جسٹس صاحب نے ہائی کورٹ اسلام آباد نے ان کی ملزمان کی جو ہے بیل ٹیکس گزاروں کی ایکسیپٹ کی، اور اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ جی یہ ہائی کورٹ نے صرف 100 روپے کے مچلکے کے اوپر ضمانتیں لے لی ہیں اور 3.174 بلین کا اس میں ٹیکس تھا ریونیو انوالو، تو اس میں وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے مس کنسیپشن کی وجہ سے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کے ڈائریکٹریٹ نے FIR کاٹی کائنیسز انرجی پاور انوویشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے خلاف۔ اس میں 4 لوگ اور بھی جو ڈائریکٹر پریویس تھے ان کو بھی، اور جو پریزنٹ 2 ڈائریکٹر تھے ان کو، اور ایک ملازم، اور ان کے نام انہوں نے دیے اس کے اندر FIR میں، اور کسی بھی قسم کی لیگل کارروائی کیے بغیر ان لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا، اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ان کو قید کر دیا، پابند سلاسل کیا، اور اس کے اندر جو ہے کوئی اسیسمنٹ آرڈر پاس نہیں کیا گیا، کوئی اپورچونیٹی ان کو ہیئرنگ کی نہیں دی گئی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کلیئر کٹ وائیولیشن کی گئی۔ اسی طرح سیلز ٹیکس ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں جس میں اسیسمنٹ ہے، ڈٹرمنیشن آف ٹیکس ہے اور پینلٹیز کے سیکشن ہے، ان کی بھی وائیولیشن کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں FBR کے جو حکام ہیں یہ من مانی کر کے لوگوں کو اس طریقے سے اریسٹ کر کے، اور یہ کہتے ہیں جی ہم سپیڈی ریکوری کر رہے ہیں، یہ انلیگل طریقہ کار ہے، یہ ریکوری کا پراپر طریقہ نہیں جو قانون دیتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہمیں بتاتا ہے۔ سیکشن 11 کی اسیسمنٹ کیے بغیر آپ کسی کو کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس کے خلاف اتنے ملین کا یا بلین کا ٹیکس فراڈ ہے یا اس نے ٹیکس ایویڈ کیا ہے؟ جب تک آپ اسیسمنٹ نہیں کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر جو آرڈرز پاس ہوتے ہیں جس میں لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے، فرسٹ اپیل، سیکنڈ اپیل، ایون ٹیکس ریفرنس تک جب لوگ جاتے ہیں تو وہ آلموسٹ سارا ٹیکس جو ہے وہ کویش ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹیکس ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، غلط ہوتی ہے۔ اسی طرح اسی کیس کے اوپر جسٹس صاحب نے ہائی کورٹ اسلام آباد نے جو آرڈر پاس کیا اس میں انہوں نے یہی کہا، اور اس میں ریفرنس دیا گیا تاج انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کا، جو پہلے لاہور ہائی کورٹ نے اپہیلڈ کیا فیصلہ، اور سپریم کورٹ نے 4/12/2024 کو منصور علی شاہ صاحب کی جو ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی اس کو اپہیلڈ کیا، اور انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن بیورو کی جتنی بھی ان کی تھی اپیلیں ساری ڈسمس ہو گئی۔ اب اس طریقے سے جب ان کی اور سپریم کورٹ نے بھی یہی ہیلڈ کی ہے کہ جب تک آپ کسی کے خلاف کوئی
सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाते तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप नहीं इनिशिएट कर सकते। पहले आप टैक्स डिमांड क्रिएट करें, उसको मौका दें कि वो अपनी फ़र्स्ट अपील दायर करे, उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में अपना केस दायर करे। ट्रिब्यूनल के बाद भी अगर कुछ फैक्ट्स ऐसे सामने आते हैं कि उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है तो वो महकमा उसमें कर सकता है। लेकिन ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है कि किसी को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिए बगैर अरेस्ट करके और उसे जेल में डाल दें, उसका कारोबार स्टक कर दें, उसके बीवी बच्चों को रोटी पानी का मोहताज कर दें। हर तरीके से उसे जो है सोशल एक किस्म का उसका बाइकाट हो जाता है कि जो शख्स बिला वजह जेल काट रहे हैं और 2 साल के बाद पता लगता है उसके खिलाफ तो टैक्स डिमांड थी कोई नहीं, वो तो बेगुनाह जेल में चला गया। तो ये सारे फैक्ट्स उसमें बहुत खूबसूरत अंदाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको डायलेट किए और सारे फैक्ट्स इसमें डिस्कस किए। और इसमें जस्टिस साहब ने हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो निचली इनकी कोर्ट से कस्टम कोर्ट, उनको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए था, सेल टैक्स की प्रोविजन देखनी चाहिए थी। अगर कोई इलीगल अगर कोई डिटेंशन है तो वो उसको इलीगल डिक्लेयर करे, ना ये कि वो बेल डिसमिस करे। इसके साथ चेयरमैन FBR को भी हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने डायरेक्ट किया कि उन ऐसे अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं और विदाउट वायोलेशन लॉ करके तो लोगों को अरेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ कि बैंक मैनेजर शौकत हुसैन, जिसकी पेटिशन बेल पेटिशन नंबर 22 शौकत हुसैन ख्वाजा, पेटिशन नंबर 22 के 22/17/2024, इसके ऊपर ये कोई इसका नाम FIR में शामिल नहीं था, लेकिन मीडिया ने इस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग की है अखबारात में और TV के ऊपर भी कि ये कोई FBR को पता नहीं क्या इन लोगों ने फ्रॉड करके तो कर दिया। इस बंदे का नाम FIR में नहीं है, लेकिन इसको भी उन्होंने अरेस्ट किया किस बिना पर कि जी इसने इस पार्टी के बैंक अकाउंट खोले थे। इसका सिर्फ इतना जुर्म है, बैंक अकाउंट खोलना भी जुर्म हो गया, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया, जबकि वो किसी भी मामले में उस इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ना उसने कोई लॉ की वायोलेशन की है, ना कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन की है। उसने अपने बैंकिंग कवानीन के मुताबिक अगर कोई उसके पास क्लाइंट आया उसने उसका अकाउंट खोल दिया। तो ये इस किस्म की ला कानूनियत जो है I&I वालों ने की और उस शरीफ आदमी को हुआ अरेस्ट करके अडियाला जेल में उसको भी बंद कर दिया। तो ये उसके साथ भी इंतहाई ज़्यादती है कि अगर कोई अपने दफ्तरी अमूर कर रहा है अपने मुतल्लिका कवानीन के मुताबिक तो उसको भी लिंक करके कि जी ये इसने उससे हाथ मिलाया था, इसे भी उठा लो। तो ये इस किस्म का कानून, ये इम्प्लीमेंटेशन I&I वाले का जंगल का कानून बनाया हुआ। थैंक यू। ये टोटल फैक्ट्स थे इसमें जो सर ने ब्रीफ किए। बिल्कुल बेसिस यही थी कि विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल लाइबिलिटी आप लोग किसी को बिहाइंड द बार नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते जब तक कि वो इस्टेब्लिश ना हो जाए कि आइदर साइड दे आर कमिटेड टैक्स फ्रॉड। इस केस के अंदर कतन कोई ऐसी बात नहीं थी। ये सिर्फ एक इशू बना लिया गया कि 3.4 बिलियन का टैक्स फ्रॉड था, जो कि सरफेस के ऊपर एक पैनी का भी फ्रॉड नहीं है, सिर्फ हाईलाइट किया गया मामले को, जबकि डिटरमिन अभी तक नहीं है मामला। अब मैं गुजारिश करूँगा इसमें एक चीज़ जी ऐड करता हूँ। जी सर। इसमें एक शहरयार जिसकी हमने बेल करवाई है आली बाजार, तो उसमें ये था कि वो एम्प्लॉई था इस कंपनी का और वो एम्प्लॉई हुआ इस टैक्स पीरियड से पहले, जो अलेज्ड FIR के अंदर उन्होंने टैक्स पीरियड दिए उसके बाद वो उसकी एम्प्लॉयमेंट हुई, उसको भी अरेस्ट कर लिया। लेकिन नाइंसाफ़ी की इंतहा है कि एक ऐसा शख्स जो उस पीरियड में उस कंपनी का मुलाजिम भी नहीं है, डायरेक्टर तो चलो दूर की बात है, उस मुलाजिम को उन्होंने पाबंद सलासल कर दिया। इंतहाई नाइंसाफ़ी और सख्त ज़्यादती है। हम ये ऐड करेंगे जी कि जो हमारी जो मीडिया की मेन स्ट्रीम है उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की है और ये जो बिल्कुल ही 100 रुपये की जो मचलके पे एक ज़मानत दी गई है, तो ज़मानत कानून के मुताबिक हुई है और अभी तक ये जो 3 अरब रुपए का जो फ्रॉड कहा जा रहा है उसमें 1 रुपये भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। और कोर्ट में भी जज साहब ने यही फरमाया है कि आप जब तक आप केस लेके आते हैं FBR के महकमा तो, लेकिन 1 रुपये का भी उसमें फ्रॉड बाद में एस्टैब्लिश उसमें कंफर्म नहीं होता, तो ये गलत केस होते हैं और इस पर हम गिरफ्तारियाँ नहीं अलाउ कर सकते कि आप लोगों को गिरफ्तार करें और उनका बुनियादी हक को तलब करें। सर अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मलिक खातम हुसैन मितला साहब से अपने ख्यालात का जाफर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि जो अफराद बेगुनाह टैक्स फ्रॉड के एलिगेशन के साथ जो
मतलब अरेस्ट हुए सोशली और मीडिया पे और यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह पे उनकी जो है ना यानी इंसल्ट की तस्हीक का ना अंदाज से यानी पेश किया गया कि वो फ्रॉड किया उन्होंने। हालांकि कानून तो सबसे पहले ये कहता है कि आप इस्टेब्लिश करें जुर्म किसी का और फिर उसको जो है ना मुजरिम बनाएं और सज़ा दें। अब वो बेचारे एक बिजनेसमैन हैं, मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या साथ बैंकर है या मतलब दीगर लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया नाजायज़ तौर पे, तो वो सारी ज़िंदगी ये चीज़ सोचते रह जाएंगे कि यार हमने क्या ऐसा किया इस मुल्क के साथ कि जो है ना हमें नाजायज़ तौर पे जो है ना हमें अरेस्ट किया और गैर कानूनी तौर पे हमें हिरासत में रखा गया। तो ये मैं जनाब हमारे उस्ताद हैं शेख ज़फ़र इस्लाम साहब, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे मुल्तान टैक्स बार की एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। हम लोग सारे इनसे सीखते हैं, समझते हैं, इनके केस लॉ से इनसे गाइडेंस लेते हैं और साथ ही जनाब तनवीर साहब हैं, इनके शागिर्द हैं, तो ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और मैं इनको इस चीज़ का मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। थैंक यू सर। अब मैं गुजारिश करूँगा सदर मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन जो अपने वफद के साथ, जिसमें मलक मकबूल अहमद साहब, मलक खादम हुसैन मेतला साहब, मलक रफ़ीक साहब, सैयद जुनैद मुमताज़ साहब और मैं मोहम्मद इमरान गाजी जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार मुबारकबाद देने आए हैं। शेख ज़फ़र इस्लाम साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जनाब तनवीर अहमद साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और शेख दानियाल साहब एडवोकेट हाई कोर्ट। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब मियां अब्दुल सत्तार साहब से सदर मुल्तान टैक्स बार अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब अपने साथियों के साथ अपने सीनियर फाजिल दोस्त जनाब शेख ज़फ़र इस्लाम साहब जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और अल्लाह की मेहरबानी से अरसा दराज से इस फील्ड के साथ वाबस्ता हैं और इन्होंने बहुत अहम पहले भी फ़ैसले कराए हैं। हमें इन पर फ़ख्र है, मुल्तान टैक्स बार को इन पर फ़ख्र है कि इन्होंने जो है जैसे कि इस केस की ब्रीफिंग दी और अल्लाह ने मेहरबानी फरमाकर जो है उस बंदे को भी रिलीज़ कराया और जहाँ इनकी कामयाबी का सेहरा है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ शेख ज़फ़र इस्लाम साहब और तनवीर साहब और इनके बेटे दानियाल साहब सिर्फ़ इनकी कामयाबी नहीं है बल्कि हमारी पूरी मुल्तान टैक्स बार की कामयाबी है। मैं ये सेहरा जो है शेख ज़फ़र इस्लाम साहब को तो जाता ही जाता है, तमीर साहब को भी जाता है, दानियाल भाई को भी जाता है, लेकिन इसके साथ मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन मुल्तान को जाता है कि जो है जाकर इस्लामाबाद में जो है इस केस को पैरवी की और जो है हाँ जी और जो है लोगों को इससे रिलीफ मिला। मैं इस बात पर फिर अपनी तरफ से और पूरे हमारे साथी जिनसे मलिक खादिम हुसैन मेतला साहब हैं, जनाब सैयद जुनैद मुमताज़ साहब हैं, मोहम्मद इमरान गाजी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मलिक रफ़ीक साहब हमारे सीनियर मेंबर हैं और भाई मकबूल साहब, इन सब का मशकूर हूँ कि इन्होंने भी वक्त निकाला और हमारी और जो है शेख ज़फ़र साहब की इस खुशी में हमारे साथ शामिल हुए। इसके साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका शुक्रिया जो यहाँ तशरीफ लाए, मुबारकबाद सब लोग आने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। की धरती के वफादार हैं, इस बार के इल्मबरदार हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं हम, वतन की मोहब्बत का जज्बा दिल में सजाते हैं हम। पाकिस्तान की अज़मत का गीत गाएं, मुल्तान टैक्स बार की शान बढ़ाएं, कानून की हुक्मरानी हमारा अज़्म है, अदल इंसाफ का सफर हमारा मकसद है। तहरीक आज़ादी को हमने सराहा, मिल्क की तरक्की के लिए कदम बढ़ाया, मुल्तान की खुशबू से सबको बांधते हैं, कानूनों की रोशनी से रास्ते संवारते हैं। टैक्स
ارمان ہے, محنت تو لگن سے بناتے مقام ہے. اٹھا دو یقین کی مثال قائم کرے, ملک کی خدمت کو اپنا فرض جانے. آزادی کی خوشبو کو پھیلائے, ملتان کے دل سے دنیا کو جڑے. قانون کی پاسداری ہمارا مشن رہے, پاکستان کی خوشحالی ہمارا خواب رہے. وطن کی ترقی کے شاہکار ہے, آزادی کا جشن مناتے ہیں ہم. وطن کی محبت کا جذبہ دل